सबको वॉइस क्लियर है? Say yes or no. सबको वॉइस क्लियर है? Yes, sir. ओके। Okay, so good afternoon to everyone. Now we will start our lecture, today's lecture. Okay, so आज 15 मिनट लेट लेक्चर स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ मुझे थोड़ा काम था तो बाहर जाना पड़ा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिख रहा है आपको क्लियर एकदम या ब्लर दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Clear. क्लियर दिख रहा है? सो करें स्टार्ट? Yes, sir. Sir. ओके, तो देखो last time what we have done, we have stated CMVT, that is Cauchy's mean value theorem. What is Cauchy's mean value theorem? Quickly चलो फटाफट बोल दो इसलिए आगे बढ़ते हैं। What is CMVT? Quickly. सर वो दो फंक्शन के लिए होता है, Okay, तो what मतलब is? दो हाँ क्या प्रॉपर्टीज होती है थोड़ा रफली? FB minus FA दो upon GB minus. दो independent- उससे FB माइनस FA से पहले कुछ रिक्वायरमेंट थी? Sir, Rolle's Yes, theorem. sir. Cos interval AB, differentiable and open interval AB, and g dash of x should be not equal to 0 anywhere Very in open interval AB. Control AB. Okay, very good. So this is what is CMVT. How we will prove it? We will define a function phi in such a way that phi of A is equal to phi of B. और ये क्यों ले रहे थे? Because we want to determine a constant A and we want to apply Rolle's theorem on phi function. So basically CMVT is a kind of generalization of Rolle's theorem for parameterized case, nothing else. So proof सबको clear था कि रिवाइज करवाऊं एक बार? Say yes or no? clear. Okay, clear. That is good. After that we have remarked 2 point that CMVT जो होता है उसमें हम अगर G की जगह आइडेंटिटी फंक्शन ले लेते हैं तो CMVT convert into LMVT and we observe the another thing that CMVT we cannot say that LMVT का generalization है because we are getting some two different constants C1 and C2 and which are not necessarily equal. So हम CMVT जो है उसको LMVT का जनरलाइजेशन नहीं कह सकते and we saw the geometric interpretation of CMVT. CMVT का geometric interpretation जो है वो same as LMVT है, वहाँ पे एक point मिलेगा जिसका डेरिवेटिव लोगे या फिर टेंजेंट लोगे that is parallel to the extreme axes को जो join करती है लाइन उसके that is the chord of end point जो है वो और एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसका टेंजेंट लोगे तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ये उसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन था। दैट इज CMVT जो है वो वर्कआउट करते हैं हम सिर्फ पैरामीटराइज्ड केस के लिए पैरामीटराइज्ड वाले फॉर्म में और LMVT जो है वो एक्सप्लिसिट फाई इज इक्वल टू f ऑफ x की फॉर्म के लिए होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में किया था। Yes, sir. ओके थीटा फॉर्म होमवर्क किया। हाँ, थीटा फॉर्म होमवर्क में दिया था। जरा बताओ ना मेरे को यार, मैं भूल गया क्या है थीटा फॉर्म। सर f of a plus h minus f of a. precise, be precise, please be precise। ऐसे रफली जब बोलना हो तब बोलो। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ थीटा फॉर्म, तो be precise what you have written। For theta form, if h is greater than 0 if h is a positive and real number and theta lies between 0 and 1, rho is less than 10,
Then CMVT can be expressed as f What is of the a form? plus h minus f of a upon g of a plus h minus g of a equals to f dash of a plus theta h minus g dash of a plus ओके और फिर सो इसका प्रूफ हाँ ठीक थीटा है। तो से h से कितने कितने मल्टीप्लाई लोगों ने यही फॉर्म मिला, थीटा फॉर्म कुछ अलग मिला किसी को? एनी वन ऑफ यू गेट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस? एटलीस्ट वन ऑफ यू गेट डिफरेंट फ्रॉम दिस? या सबको यही मिला या किसी ने वर्कआउट ही नहीं किया? प्लीज रिप्लाई। सर मैंने वर्कआउट ही नहीं किया। वर्कआउट ही नहीं किया, वेरी गुड। क्यों बिजी थे आप? 2 दिन, एक दिन का तो गैप मिला था यार। सर भूल गई। वेरी गुड। सर राइट है। सॉरी, राइट है। ओके, और किसी ने ट्राई किया? कोई और किसी ने ट्राई किया हो? ओके, नो प्रॉब्लम, आज ट्राई कर लेना। नाउ फुल डेरिवेशन ये ऐसा Sorry? कंसीडर बोलो तो बोलो। फुल डेरिवेशन ही कि आप फंक्शंस कंसीडर करके। ओके ठीक है, चलो तो अब हम फटाफट इसको देख लेते हैं क्या करना है इसमें। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 लेस देन थीटा इज लेस देन 1, ये तो हमको दे रखा है। Now what we will substitute? B is equals to a plus h, what we have done in LMVT case. C is equals to a plus theta h, and we will find out the estimate of C. This is the procedure. 0 is Yeah. less than theta is less than 1. This is the given condition, and using this we will find out the value of C. Okay. So basically 0 is less than theta is less than 1. This implies 0 is less than theta times h is less than h, because h is a positive real number. Therefore a plus 0, that is a is less than a plus theta h is less than a plus h. This implies a is less than our required c is less than a plus h is b. So ये ultimately हमारी condition आ गई, c lies between open interval a b, और इसके corresponding a plus theta h है, that is lies between open interval a to a plus h. Clear यहाँ तक सबको? Now Yes, sir. what we have to do? Yes. Just we have to Yes. put down the values in the given form. वहाँ पे f A, of b B था and तो C. b की जगह a plus h, बस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। इसमें क्या भूल जाना और क्या याद रखना है यार, अभी बैठ के कर दो, 2 मिनट में हो जाता। 2 दिन की, 1 दिन का गैप मिला फिर भी ऐसा क्लियर है थीटा फॉर्म? इसका बंद कर। हाँ बस सॉरी बोलो। वो कुछ डिस्टर्बेंस है सारे, कोई वायर डिस्टर्बेंस है पता नहीं। तो अब ये तो थीटा फॉर्म हो गई, ठीक है। थीटा फॉर्म का हम पीडीएफ से भी देख लेंगे, आप वहाँ से जो भी आपका लिखना है या एसएस लेना है जो भी कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट अबाउट द थीटा फॉर्म। नाउ कम टू द concept. Suppose in the LMVT what we have done, we prove some inequalities. ऐसा कुछ था, कोई एक्सप्रेशन था, यहाँ कोई एक्सप्रेशन था और यहाँ कोई एक्सप्रेशन था, ठीक है। एंड व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव? वी वांट टू फाइंड आउट अ फंक्शन इन सच ए वे दैट ये जो इन बिटवीन का पोर्शन है वो हमारा क्या हो जाना चाहिए? एफ बी माइनस ए एफ है। हम क्या करते थे, इसी इनइक्वालिटी अगर एलएमवीटी के केस में प्रूफ करनी होती तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई व्हाट इज फंक्शन एंड व्हाट इज इट्स डोमेन। ए एंड बी, हाँ दो। ओके, दैट इज डोमेन ए एंड बी, क्लोज इंटरवल ए बी। ये हमको मिल जाता था। उसके बाद क्या करते थे, सिंपली एलएमवीटी अप्लाई करते थे और बाय सम कैलकुलेशन वी विल कम अराइव एट दिस स्टेज। सिमिलरली अब देखो सीएमवीटी है, सीएमवीटी में क्या हो जा रहा है, इंटरवल तो आएगा ही आएगा, से यस और नो, इंटरवल के बगैर तो काम ही नहीं होगा।
Yes. Okay. And then additionally, already what we have f with us, and additionally we have g with us. नथिंग एल्स, इसके अलावा तो कुछ है नहीं CMVT में। इसके अलावा क्या Yes. डिफरेंस है? सिर्फ एक फंक्शन g ज्यादा आ गया। नाउ Yes. सपोज आई हैव सम एक्सप्रेशन, again I have some expression and here some expression, so we want to find out f and g in such a way, which way? ये जो बीच का एक्सप्रेशन है that is your fb minus fa upon gb minus ga बन जाए। ये जो बीच का एक्सप्रेशन है आपका that should be turns out to be fb minus fa upon gb minus ga। बिल्कुल LMVT के क्वेश्चंस थियरी उसके पैरेलल में चल रहा है ये सब। से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अगर Yes, हम sir. ये एक्सप्रेशन मिल गया अप्लाइंग CMVT, सो व्हाट वी विल गेट इन द इक्वल ऑफ दिस f dash c upon g dash c। ओके, अब हमारे पास f dash c की वैल्यू होगी कोई और g dash c की वैल्यू होगी, तो हमारा टास्क क्या रहेगा? a लेस देन c लेस देन b को यूज करके और ये जो एक्सप्रेशन है वो ऑब्टेन करना। LMVT में भी हमने वही किया था। व्हाट वी हैव डन, a लेस देन c लेस देन b के यूज करके हमने f dash c का एस्टिमेशन फाइंड किया था, Sir. और यहाँ पे हमारे पास Yes. अपॉन में g dash c है। बस इतना ही ज्यादा काम करना है। तो इसमें कुछ है डिफरेंस? कुछ नहीं है। No, सिर्फ sir. एक g No. f फंक्शन आइडेंटिफाई करो, g फंक्शन आइडेंटिफाई करो, CMVT अप्लाई करो, उसके बाद फिर f dash c अपॉन g dash c का एस्टिमेशन फाइंड करो। c लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल a टू b से। सबको क्लियर है क्या मेथड है वो? Yes, sir. ओके गर्ल्स, आप हो क्लास में या ये दो चार लोग Sir. जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वही हैं? Yes, क्लियर है sir. सबको क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चंस में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो चलो फटाफट इसका अब हम PDF देख लेते हैं। नाउ सी दिस इज द थीटा फॉर्म ऑफ, यहाँ से हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है आज का। अनदर फॉर्म दैट इज थीटा फॉर्म ऑफ Cauchy's mean value theorem। ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर। इफ h is a positive real number and theta lies between open interval 0 1, then fb minus fa upon gb minus ga जो एक्सप्रेशन था that can be expressed as f of a plus h minus f of a upon g of a plus h minus g of a is equals to f dash f of a plus theta h, sorry, f dash a plus theta h and g dash a plus theta h। So what we have done in LMVT, similarly let us substitute। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सिर्फ एक बार मैं बता रहा हूँ PDF में क्या लिखा है वो। Let us substitute b is equals to a plus h, c is equals to a plus theta h। Find out the estimation of a plus theta h. This is lies between a to a plus h. Then put the values and you get the answer. Done? कोई डाउट इसमें? No, sir. No, sir. No, sir. ओके गुड, समझ आ रहा है सबको यहाँ तक का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Shall we move ahead? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is the exercise for our next purpose। पहले क्वेश्चन ही लिखो, आंसर बाद में देख लेंगे PDF में, देखना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन लिखो एंड वर्कआउट करना चालू करो। मैं भी आपके साथ साथ वर्कआउट करूंगा। राइट डाउन द क्वेश्चन। वेरीफाई Cauchy's mean value theorem for the following function, that is f and g are given, and find out what is the value of constant c। You can do? Yes, sir. Sir, ये A1 है ना? सॉरी, नहीं लग हाँ, रहा। 1 is less than or equals to हाँ, x is less than or हाँ। equals to 2। और इसमें आपको क्या करना है? सिंपली CMVT वेरीफाई करनी है। वेरीफाई होती है if CMVT applies, then and then you can find out the value of c। LMVT के एग्जांपल किए थे हमने, पॉलिनोमियल फंक्शन कंसीडर करके उसके लिए c की वैल्यू फाइंड की थी हमने। तो कुछ ज़्यादा इसमें काम करना नहीं है, आप करो, यू शुड ट्राई। किसी का हो जाता है तो आप मुझे इन्फॉर्म करना।
If any one of you has completed, then tell me, we will continue. Sir, C equal to 0 and 14/9. Okay, which one is lies in your required interval? 14/9. Sir, 14/9. Okay, that is a required answer. Okay, सबको आ जान दो एक बार, क्योंकि अब हमारी जो स्पीड चल रही है कैलकुलस की वो थोड़ी फास्ट चल रही है, सो वी हैव टू वेट फॉर अनदर वन आल्सो. सर 14/9 आ रहा है. 14/9. Any everyone is getting? Yes, sir. 14/9. Good. Yes, sir. मतलब जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ तो आ रहा है, that is good for me. डायरेक्ट पीडीएफ रीड आउट करने से कोई मतलब क्या है समझ नहीं आता है, साथ साथ में मैं भी लिखूंगा, रफली उसको एक्सप्लेन करूंगा और आपको फिर पीडीएफ शेयर करूंगा ना, तो थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा. बट उससे स्पीड बढ़ गई हमारे सिलेबस की, ज़्यादा जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है सिलेबस. अच्छा सर, तो रिवीजन का भी टाइम मिला. अभी और रिवीजन की बात कर रहे हो यार, रोज रोज तो रिवीजन करवा रहा हूँ. कल अरे क्या ऐसा पढ़ाया नहीं आपको? सर, ऐसा नहीं. हमको मतलब आप छुट्टी दो तो हम घर पे पढ़े, हाँ हाँ, खत्म हो जाए बाद में. एक ही बात मैं तो कहूँगा, ये जो हम करवा रहे हैं आपको क्लास में, दैट इज जस्ट अ वे ऑफ एजुकेशन की, मतलब क्या क्या वेरिएशंस है सिलेबस में, दैट वी आर जस्ट इलस्ट्रेटिंग टू यू. एक्चुअल इससे तो बहुत ज़्यादा कंटेंट दे रखा है रेफरेंस बुक में. यू शुड देखो, थियोरी जो होती है वो रेफरेंस बुक के जितनी ही है. फॉर एग्जांपल CMVT, थीटा फॉर्म्स का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, रिमार्क्स एंड ऑल. बट एग्जांपल्स जो है ना वो बुक्स में ज़्यादा दे रखे हैं, सो आप वो भी ट्राई करो. अभी आप BSc फर्स्ट ईयर में हो तो आपको ये चीज़ में भी रियलाइज ना हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको होगा कि रेफरेंस बुक फॉलो करना चाहिए. तो अभी से थोड़ी आदत डालो, एक साथ से ओवरडोज नहीं करना है, बट हाँ थोड़ी आदत लगाओ कि रेफरेंस बुक यूज करो. ओके, एवरीवन कंप्लीटेड? चलो. यस सर. सो गिवन Yes, sir. फंक्शंस आर क्लियर. पॉलिनोमियल फंक्शन, किसी को डाउट है पॉलिनोमियल क्यों है उसमें? No, sir. No, sir. ओके, सो पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. सो चाहिए थी वो कंडीशन मिल गई. नाउ think about the derivative of g. What is derivative of g? 3x square. And in the interval 1 to 2 कहीं पे 0 हो रहा है ये? नहीं. Okay, No. so third condition, that is derivative of g different from 0 for all values of x lies in its domain, that is close interval 1 to 2 non-zero. So derivative non-zero हो रहा है, थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई. Therefore CMVT से वहाँ पे एक C एग्जिस्ट करेगा open interval 1 to 2 which satisfies the following condition: FB minus FA upon GB minus GA is equals to F dash C upon G dash C. Put out the values of A and B. What is F of B? What is F of A? What is F dash C? What is G dash C? वो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे. आफ्टर दैट यू विल गेट 14/9. आंसर सबको मिल गया, बट हाउ टू राइट दैट यू शुड सी फ्रॉम दिस PDF. सॉल्व तो हम कर लेंगे कहीं से भी, आंसर ले आएंगे, बट आपको लिखना कैसे है तो आप एक बार देख लो तरीका. हो जाता है तो आप कहना, आगे बढ़ेंगे. एनी वन ऑफ यू यस सर, हो गया. करें आगे? Yes, sir. ऊपर वाला Yes, sir. Yes, sir. आगे. ओके, बस. हाँ यहाँ तक लिख लो. अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे अब आएगा.
चले? Yes, sir. ये रहा. Yes, Show sir. that the function given by these satisfies the conditions of Cauchy mean value theorem and find out the theta. That is theta फॉर्म में हमें थीटा एस्टिमेट करना होता है, वहां पे एक ही वो अननोन है, और जो हमारा सिंपल फॉर्म होता है उसमें सी अननोन होता है, which is we are getting from CMVT. So basically what is our next task? First of all we have to verify. देखो CMVT तो वेरीफाई यहीं से हो जा रही है क्योंकि दोनों फंक्शन जो पोलिनोमियल है. पहला फंक्शन जो वो x square minus 2x that is a polynomial, another one is x square minus x that is also a polynomial, therefore both are differentiable continuous. अब डेरिवेटिव देख लो g का क्या हो रहा है. डेरिवेटिव ऑफ g, what is the value of derivative of g? 2x plus 1, 2x minus 1. 2x minus a1 Minus 1. हाँ, अब उसकी वैल्यू देखो 2 से 3 में कहीं पे 0 हो रही है. No. ओके, तो CMVT तो सेटिस्फाई हो गई. अब देखो वहां पे हमें C नहीं फाइंड करना है, ठीक है? अपने हाथ पे कंट्रोल रखना, जल्दी से C मत फाइंड कर देना. वी वांट टू फाइंड आउट थीटा. ओके, व्हाट इज योर A? व्हाट इज योर A? 2. 2 व्हाट इज योर B? 3 अच्छे से बताता हूँ. H1 है. देखो एक मिनट. हाँ, देखो इसमें दो मेथड है हमारे पास कि अगर किसी के हाथ पे कंट्रोल नहीं है बाय चांस, ठीक है, हाथ रुक नहीं रहा है और उसने C फाइंड कर दिया, ठीक है, मेरे तो पेन ही नहीं चल रहा है. ओके ओके, if we are interested in to find out a theta which is lied between 0 and 1, और अगर किसी ने क्या किया कि जल्दी जल्दी में C फाइंड कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर वहां पे ऐसा कह रखा है कि यूजिंग थीटा फॉर्म ओनली, देन दिस इज नॉट वैलिड. बट इफ it is asked only just find out the value of theta, then if you have C you can very well find out theta. How? अब C है, A और B भी आपके पास है. सपोज यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 plus 1, so ये हमारा H हो जाएगा. A plus H that is our B in theta form, and what is our C? That is nothing but A plus theta H. अब A क्या है हमारा 2, थीटा क्या है थीटा, और H क्या है हमारा 1, and what we are getting C. suppose अभी टाइम बीइंग C ये C ही है हमारा, so यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा C minus 2 by 1, तो यहाँ से भी थीटा मिल जाएगा. that is not an issue. 1/2. हाँ, जो भी whatever. okay, done your question. Yes, sir. सभी Yes, sir. Yes, sir. सभी लोगों का कक्षा में उपस्थित समस्त विद्यार्थियों का हो गया. Yes, हाँ sir. साहब. Yes, sir. थोड़ा इंटरेस्टिंग रखो यार, इजी पेपर है, इतना ज्यादा लोड मत लो, एंजॉय होके पढ़ो एकदम मस्त. ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन हाउ CMVT verify for this function, and then somehow we have estimated what is the value of theta. अगर किसी को मेथड लिखना है तो देखो ये मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि कहाँ से H आ रहा है और कहाँ से थीटा आ रहा है, तो कंफ्यूज मत होना अचानक H कहाँ से 1 ले लिया, बिकॉज H इज ए रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन 0, बट पर्टिकुलरली H 1 कहाँ से आया तो आप थोड़ा देख लो, कैलकुलेशन किया है मैंने पास में, तो क्या है ना, आपको कंफ्यूजन ना हो, एंड देन समहाउ यू विल गेट डेफिनेटली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा. Okay, shall we move ahead? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so यहाँ तक Yes, लिख दिया, लिखना भी है, हाँ, साथ में साथ सिर्फ पढ़ने से मतलब नहीं है, लिखो तो आप एग्जाम में पढ़ सकते तो हो. थोड़ा ऊपर करो. हाँ, एक मिनट. थोड़ा. मेरे बस. पास तो PDF है और मुझे पढ़ना नहीं है इसलिए चलेगा, लेकिन आप लोगों के पास तो कुछ नोट्स होने चाहिए ना. समझ आ रहा है ना सबको? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. इजी है, Yes, sir. हाँ सर. मस्त है सर. बस मस्त है, वही चाहिए यार.
ओके चलो, हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is your another one question. Now come to the main question. अब थोड़ी देर आप इसको वर्कआउट करो, अच्छा है क्वेश्चन किया हुआ है ऑलरेडी हमने, सिर्फ थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन है। If write down the question, if 0 is less than x is less than 1 and we have to prove that 1 minus x upon 1 plus x का square root that is less than log of 1 plus x upon sin inverse x is less than। लिसन एवरीवन, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनइक्वालिटी का, इसमें सिर्फ मेनली हमारा फोकस क्या होता है, व्हाट इज f, व्हाट इज g, व्हाट इज इट्स डोमेन। अगर वो तीन चीजें हमारे पास आ जाती हैं तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन इन रिटन वर्क विद पीडीएफ थी। सो थिंक अबाउट दिस एंड गिव मी व्हाट इज थीटा फॉर्म से हो जाएगा। डोंट गो फॉर थीटा फॉर्म, सबको थीटा फॉर्म नहीं आएगा, आप सिंपली फॉर्म से एक बार करो ना भाई। ओके सर। थीटा फॉर्म में मत जाओ जब तक आपको सिंपल से पॉसिबल है। दिस आर द रिक्वायर्ड फील्ड, यू हैव टू फिल इट आउट, दिस इज स्टार कॉलम। और fx तो log t। ओके, log t और कुछ? 1 to 1 plus x। ओके, उसका आप रेक्टिफाई कर सकते हो और कुछ? 1 to 1 plus h की जगह कुछ और सब्स्टिट्यूशन ले लो तो थोड़ा उसको सिंपल बना सकते हो log को। यू कैन वेरी वेल टेक, चलो सब एक बार पहले गैस तो करो फिर डिस्कशन करते हैं। गैस करो कुछ कुछ। गर्ल्स, ये आपके लिए भी है शायद क्वेश्चन। तो सर डायरेक्ट ले लेंगे ना, एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स और जी ऑफ एक्स साइन इनवर्स। ओके, उसकी रेंज क्या लोगे तो फिर? किसकी रेंज? फंक्शन एक्स लोगे, की। सॉरी रेंज नहीं, डोमेन। यू हैव टू प्रोवाइड डोमेन आल्सो ना। सर डोमेन तो ऊपर दिया है ना 0 to 1। ओके गुड। गर्ल्स, आई एम सर एक्सपेक्टिंग हाँ सर। कोई तो आंसर बोलो, इतना सिंपल है तो फिर। जीरो से x, देखो फिर से खोल दिया। ओके, सो नो प्रॉब्लम। आई विल टेक fx टू बी log ऑफ t ले लो या log ऑफ x ले लो, t लेना हो तो t ले लो। ft इज इक्वल टू log ऑफ t, gt इज इक्वल टू साइन इनवर्स t। अब देखो ये ले लो, उसके बाद थोड़ा इसको एनालिसिस करो, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बस आंसर पे आ जाओ सॉल्व करने लगे। अब इसको पुट आउट करो। अब इसको क्या लिख सकते हो, log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 ऑन साइन इनवर्स साइन। x माइनस साइन इनवर्स 0, ऐसा लिख सकते हो ना? यस। लिख दिया आपने। यस सर। तो सर अलग अलग नहीं हो जाएगी? कैसे अलग हो जाएगा, कैसे अलग हो जाएगा? एफ और जी की डोमेन। हाँ तो डोमेन कहाँ से अलग होगी, हम वही तो मॉडिफाई करना चाहते हैं, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ पहले आप रफली एक बार लिख के देखो। अब आप क्या कर सर सकते तो हो? इसमें टी का डोमेन ले लेंगे, टी का डोमेन हाँ। 1 से 1 प्लस एक्स तक हाँ, और तो चलेगा। नीचे वाले का 0 से। तो अब नीचे आपका x जो है वो 0 से लेके x लाइज कर रहा है, ठीक है? 0 से लेके x तक नीचे g की रेंज, ठीक है? और f की आपकी क्या आ रही है, यहाँ आप इसको 1 प्लस 0 लिख सकते हो ना। log 1 कैन बी रिटन एज log 1 प्लस 0 ऑल्सो। सो 0 एक वेरी कर रहा है और एक x आ रहा है, सो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा,
जो आपका x है, सॉरी t ले लो पैरामीटर, t लाइज बिटवीन 0 to x। log of 1 ये plus एक तो मेथड है, एक तो ये मेथड है, या फिर आप डायरेक्टली अगर लेते हो ना तो 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1 वाली रेंज, तो 0 1 के साथ भी वर्कआउट कर सकते हो। फंक्शन में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लोगे तो उसकी रेंज जो t की जगह 1 प्लस टी लेते हो ना, तो देखो अभी सर वही तो लेंगे। हाँ वही लेंगे ना। तो अगर आप ये लेते हो ना 1 प्लस टी, तो उसमें फिर ये रेंज हो जाएगी सिंपल वाली जो गिवन है वो। एक मिनट देखो, x गिवन है ऑलरेडी 0 से 1 में, यहाँ से आप मैंने जो किया वही मेथड आप अप्लाई करो कि a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1। कैसे? तो log 1 प्लस एक्स माइनस log ऑफ g 1, log ऑफ 1 लिख दो, और 1 कैन बी रिटन एज 1 प्लस 0। क्लियर? से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूजन। एक मिनट, हाँ मुझे पेज चेंज करना है, सो एक मिनट वेट करो। ये रहा। देखो अब हमारा फंक्शन अगर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, जस्ट मैं उसको रीराइट करता हूँ, log 1 प्लस एक्स माइनस log ऑफ 1 लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ 1 है तो मैं इसको भी 1 ही रहने देता हूँ और 0 ले लेता हूँ, डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स x एज इट इज माइनस साइन इनवर्स 0। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब इसमें No, sir. वेरी कौन No, वेरी sir. कौन कर रहा है वो देखो, हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। वेरी कौन कर रहा है? ए और बी, फंक्शन तो सेम ही ले रहा है। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है उसमें x आ रहा है और एक जगह 0 आ रहा है, सो वेरी कौन कर रहा है? 0 to x में कुछ वेरी हो रहा है, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड बी। सिमिलरली यहाँ 0 था, यहाँ x था, तो इसके केस में भी b जो है हमारा x हो जाएगा, a जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। से यस और नो? Yes, sir. So what? Yes, so sir. now quickly say what is your f of x, that is f of t ले लो, पैरामीटर में Log. कंफ्यूज हो जाते हैं। log 1 plus Log Log t, of 1 plus t. what is your g of t? Sin Sin inverse inverse t. t. Therefore t lies between close interval 0 to x। 0 to x. okay, now ये देख लो क्लियरली, इसमें तो LMVT अप्लाई हो सॉरी CMVT अप्लाई हो जाएगी। Yes, sir. डेरिवेटिव हो ऑफ g डिफरेंट फ्रॉम 0 हो जाएगा Yes, sir. 0 तक में, हाँ, क्योंकि हाँ, हो जाएगा। x जो है ना वो आपका स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, बिकॉज आई थिंक डेरिवेटिव दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर g का। T square. और Yes, ये sir. 0 कब होगा? जब हमारा t जो है वो आइदर -1 और +1 होगा, बट हमारा x जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, सो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और 0 से भी बड़ा है, सो -1 भी नहीं हो सकता। Yes, sir. Therefore derivative is different from 0 throughout the domain, so we can very well apply CMVT। CMVT अप्लाई करते हैं हमें वहां पे एक c मिल जाएगा 0 to x में, such that what is such that log 1 plus x minus log of 1 plus 0। अभी पूरा लिखो, शॉर्टकट मत लो, नेक्स्ट स्टेप में उड़ा देंगे उसको। sin inverse x minus sin inverse 0, that is nothing but f dash c upon g dash c। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखो, log of 1 plus x sin inverse x, that is nothing but what is f dash c? Quick बोलो फटाफट। 1 upon 1 plus plus t. और उसमें c सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1 plus c हो जाएगा, हाँ, 1 plus एंड g dash c क्या है 1 हमारा? upon- 1 of root of 1 minus upon t square। under root of 1 minus t One square. under root 1 minus c square. ओके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 1 plus c into square root of 1 minus c square upon 1। करेक्ट यहाँ तक? Yes, sir. करेक्ट है? ओके Yes, sir. अगर अभी a minus b a plus b करके हो गया सर। अरे वाह, तो बहुत फास्ट निकले यार। तब क्या बचेगा? वो नीचे Root वाला का of रूट और 1 ऊपर वाला minus root. c upon अंडर root रूट ऑफ 1 minus c upon 1 plus। मैं ना पेज में लिखने के चक्कर में भूल गया, तो वहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको?
ओके, सो रूट ऑफ 1 माइनस सी अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस सी। ठीक है, अब इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन इसका पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। ठीक, नाउ come to the reverse step. What are the reverse step? Our c lies between 0 to x. Say yes or no. अब हमें क्या चाहिए? सबसे पहले Yes, 1 sir. प्लस सी चाहिए, नीचे से स्टार्ट करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। सो वी वांट c प्लस 1, सो 1 लेस देन 1 प्लस सी लेस देन 1 प्लस x। नाउ वी वांट, और चलो इसको भूल जाओ अभी के लिए, c हमारा पॉजिटिव है, दैट इज अवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, सो व्हाट वी कैन डू अनदर थिंग, ये एक्सप्रेशन पहले कैलकुलेट कर लो सिंप्लिसिटी के लिए। माइनस से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी चेंज, उसमें फिर 1 तो 1 माइनस सी 1 माइनस है। यहाँ तक क्लियर सबको? Yes, अब sir. c ग्रेटर देन 0 है तो 1 प्लस सी ग्रेटर देन 0 होगा इफ c इज पॉजिटिव। तो अब इससे अगर आप थ्रू आउट डिवाइड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा इनइक्वालिटी में? नो सर। So inequality remains same. Say yes or no. Yes, sir. Now, Yes, sir. now what you can see, c is less than x. 1 plus c is less than 1 plus x. Say yes or no. यस सर। Yes. तो ये Yes, जो sir. एक्सप्रेशन है, नीचे चल गया, वो दिख नहीं रहा नीचे। हाँ नीचे चला गया। ठीक है, हाँ मेरे को दो जगह यार सब सेट करना। ओके, नो प्रॉब्लम। सो अभी तक हमने क्या किया कि 1 प्लस सी जो है दैट इज लेस देन 1 प्लस एक्स, यहाँ तक बराबर है। यस सर। Yes, sir. अब रेसिप्रोकल लेते हो 1 प्लस सी दैट इज ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स। यहाँ हमारे पास देखो लास्ट स्टेप में क्या था, 1 माइनस एक्स था, ये वाला समवेयर। तो दिस इज ग्रेटर देन विच, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस सी जो होगा दैट इज ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस सी 1 प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि x जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, देयरफॉर 0 इज लेस देन 1 माइनस x, इनइक्वालिटी विल डजंट चेंज। सो ये अगर हम एक्सप्रेशन क्लब करते हैं उसमें जो हमारा लास्ट स्टेप था दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस सी। देखो अभी मैं वापस लिख देता हूँ, रीराइट कर देता हूँ एक्सप्रेशन। 1 अपॉन 1 प्लस सी दैट इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन था? 1 माइनस सी अपॉन 1 प्लस सी। 1 minus c upon 1 plus सी, और वो ग्रेटर देन था 1 माइनस एक्स अपॉन 1 minus x upon 1 plus. plus c दिस इज ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब देखो इसको एक बार फिर से मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको? अगेन यस सर। सर ये तो सेम इसकी ही है। सॉरी स्क्वायर रूट बाद में ले रहे हैं। सर वो लास्ट सॉरी कुछ बोलो नहीं। अब, समझ कोई कंफ्यूजन? सर वो दोनों तो सेम ही है ना, कौन वो सर्कल की हुई टर्म और उसके बाजू वाली ना ना, लास्ट वाली। नीचे यहाँ पे नीचे सी है और यहाँ पे एक्स है, तो हाँ तो अलग है। ओ हाँ ओके, फिर मैंने क्या किया, मिडिल टर्म को हटा दी, ये और ये लिख दी डायरेक्टली। नाउ व्हाट यू कैन डू, what you can do, our c is less than x, 1 plus c is less than 1 plus x, therefore 1 upon 1 plus c जो होगा that is greater than 1 upon 1 plus x. Say yes or no? यस सर। ये हाँ एक सर, तो नीचे चलेगा। हाँ नीचे चलेगा फिर से। ओके चलो, इतना इवैल्यूएशन इनफ है। अब यहाँ पे देखो अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो ऑल द थ्री साइड्स, सो ये क्या हो गया हमारा, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी हो गया। और अब देखो यहाँ जो ये जो टर्म है रूट ऑफ 1 अपॉन 1 उसको हम सेट कर लेंगे, और ये तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया हमारा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स। Yes, sir. ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, sir. कम टू द यस क्लियर। सर। लिखते जाओ, चलो यहाँ तक फटाफट लिख लो, यहाँ तक का राइट डाउन। क्वेश्चन लिख लिया सबने? यस सर। Yes, sir. सर हाँ बोलो। ओके, यहाँ तक हो जाए तो मुझे बताना।
हो गया सर। डन। हो गया। एवरीवन कंप्लीटेड टिल दिस? यहाँ तक सबने लिख दिया? यस। अब कुछ नहीं, इसका एस्टिमेशन फाइंड आउट करना है। 0 is less than c is less than x and already given that 0 is less than x is less than 1. देखो जो लास्ट टाइम हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है ना 1 upon 1 plus c, तो उसको हम क्या करेंगे 1 plus c is less than 1 plus x और फिर उसमें x की जो कंडीशन है उसको यूज कर लेंगे, सो दैट विल बी फाइनर। वहाँ से हो जाएगा हमारा जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वहाँ से मिल जाएगा। कल जो लेक्चर है हम उसमें पहले से स्टार्ट किया था वहां से लेके और अभी तक का जो भी है वो एक बार क्विक रिकॉल कर लेंगे, ओके? बिकॉज अभी हम अच्छी स्पीड में चल रहे, तो कल हम एक बार अभी तक जो किया ये कोशी मीन वैल्यू थ्योरम वहां तक एक बार रिकॉल कर लेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, डाउट नहीं है ओके तो सर। जो मैं कहूँगा वो आप लोग सुनना। एंड काइंड ऑफ जनरल टॉक कर रखें, कल हम थोड़ा जनरल ऐसे ही बात करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके। कल 31st है इसलिए। ना 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 ना, मेरे को वो तो माइंड में भी नहीं है 31st जैसा। तो यार थोड़ा नीचे कर दो। नीचे इन द सेंस ये खत्म करो क्वेश्चन, ये हो गया। So tomorrow we will जनरल थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा रिवीजन करेंगे, आपसे भी थोड़ा इंट्रोडक्टरी रखेंगे। इंट्रोडक्टरी मतलब सबका तो पॉसिबल है ही नहीं, 84 स्टूडेंट्स हैं, बट जनरल बात करेंगे कोई भी। ओके सर। ओके, सो डन यहाँ तक? यस सर। हाँ सर। गुड। तो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन। Verify Cauchy's mean value theorem. Also determine the value of c. The function is f of x is equals to x square plus 2x minus 3 and g of x is nothing but x square minus 4x plus 8 where x lies between close interval 0 to 1. चलिए होमवर्क दे दो। ना ना अभी करो होमवर्क, कहाँ अभी टाइम है यार, फिनिश करो अभी उसको। होमवर्क क्या, छोटे बच्चे थोड़ी हो। हाँ सर, फिर होमवर्क भूल जाते हैं। हाँ अब तो भूल जाते हो, एक थीटा फॉर्म छोटा सा 2 लाइन लिखनी थी वो भी भूल गए। 48 आवर्स में भी आपको याद नहीं आया कि 1-2 लाइन लिखनी है। सर 4x plus 8 है। यस, x square minus 4x plus 8, 0 is less than or equals to x is less than or equals to 1.
सर ये तो आई हम्म? दोनों सी तो कट गया। सर 1/2 आएगा सी। ओके, और किसका कट किसका जा रहा है? मेरा सर सही सही है। और किसी के वैल्यू आई सी की? 0, 1, 1/2 जो भी। सर 1/2 आई। आ गए? सर तो मेरा कट नहीं गया। कटा था, हनी का कटा। हाँ सर अरे मुझे है ना आवाज सेम ही सुनाई देती है यार। सेम। सेम आवाज सुनाई देती है, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कौन बोल रहा है। यस सर आ गई। डन। ओके, तो गर्ल्स में से आई वांट आंसर फ्रॉम 3, एटलीस्ट 3 लोग तो कम से कम कहो कि हाँ हो गया। गर्ल्स? Yes, sir, done. 1/2. ओके, एनी अनदर पर्सन? 1/2 यस sir. सर 1/2 आंसर आ रहा है। ओके, सो हम इसको 1/2 आंसर डिक्लेयर कर देते, ठीक Sir है? 1/2. Okay, so we will declare 1/2 as our required value of C. See these 2 question, 3 question. These are for your purpose. Write down the questions. अगर नहीं कर रहे हो, अगर आप नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम हम इसको सॉल्व करेंगे। अब तो मेरे पास भी पेज और पेन है, सो मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने की। सो आप लोग सिर्फ नोट डाउन कर लो। You should note down these questions 3. देख लिया सर। सबका हो गया? डन सर। डन। यस सर। यस सर। Yes, sir. डन। Yes, sir. सो ये आप लोग कर सकते। देखो इसमें आई थिंक एक फर्स्ट का आंसर दे रखा है, बाकी थर्ड का भी आंसर दे रखा है, बिकॉज ऑफ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर श्योर दैट। और ये जो क्वेश्चन है वो मुझे डाउटफुल है, लग रहा है कि सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, सो यू हैव टू चेक इट आउट। एंड इसका भी आंसर दे रखा है, ये थोड़ा पढ़ लेना, कुछ खास है नहीं इसमें। और कीपिंग ए फिक्स मतलब ये जो ए आपका है ना इंटरवल का इनिशियल पॉइंट, उस ए को कहा है कीपिंग ए फिक्स पॉइंट। कांस्टेंट ए को फिक्स रखना, ऐसा वो कह रहा है। डोंट बी कंफ्यूज, वरना बोलोगे समझ नहीं आया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्लोज करूं मैं? यस सर। एवरीवन? यस सर। Yes. Yes. सर ये Yes, sir. जी डैश
जी डैश से तो 0 नहीं हो जाएगा इसका? इसलिए तो मैंने बोला हाँ डू पर नॉट इक्वल टू। चेक करो, आप वहाँ पे चेक करो कि मतलब CMVT सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, और जो भी आपका आंसर है वो आप आपके पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। ओके सर। ओके सर। तो सर। रखे आज के लिए इतना। हाँ हाँ बोलो। यस सर। सर एक रिक्वेस्ट आज करनी थी। हाँ बोलो। सर कल प्लीज क्लास का थोड़ा कुछ मैनेज करिए ना। क्यों, मतलब क्या कुछ कहीं बाहर जाना है? सर कल, हाँ सर 31st से कल तो मतलब क्या मैनेज क्या करना है? सर कल क्लास रहने दो ना प्लीज। देखो ऐसा है शुभम, हाँ सर। एक्चुअली क्या मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ तो इतनी अथॉरिटी मेरे पास नहीं, बट हाँ मैं 31st है तो कल आपको थोड़ा लिबरल, मतलब पढ़ाई से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जनरल बात करेंगे कोई भी। और आई थिंक इतनी अथॉरिटी मेरे पास नहीं है कि मैं लेक्चर आपका कैंसिल करूँ, सो सॉरी। ओके सर। और ये भी ओके सर। जनरल टॉक ओके हम सर। करेंगे, सो दैट इज अप टू बिटवीन अस। उसका कहीं दूसरे लेक्चर में आप कहीं पे भी डिस्कशन मत करना कि ये सर ने ऐसा किया और ये सर ने ऐसा किया। हम पहले नो थोड़ा सर। रिवाइज करेंगे हाँ व्हाट वी हैव हाँ डन। सर। सॉरी। नो सर नहीं करेंगे। नो सर, ये सब काम नहीं करते। वैसे भी सर कहीं पे इतनी बातें नहीं करते कोई। ऐसा? हाँ सर, कुछ भी नहीं करते हैं। सीरियसली जो सिर्फ आते पढ़ा नहीं रहे करते तो करने पढ़ाते हैं। का ही नहीं। अच्छा लगा चलो मुझे सुन के कि आप लोग सेटिस्फाई हो। आज मैं आप भी भी यस ज्यादा सर। फ्रेंडली हो सर। मैं बाहर गया था एक्चुअली, अभी थोड़ा बात कर रही थी तो मैंने उनको मेरा वे ऑफ कैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो मैंने बताया, तो वो जो सामने वाला व्यक्ति था वो बिलीव नहीं कर रहा है कि मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो और स्टूडेंट्स विद इन द क्लास कहकर जा रहे हैं कि सम्स एंड थियरी तुरंत ही क्लियर है। मैंने बोला यस। उसको लगा ये मतलब शो ऑफ कर रहा है, बट मैंने बोला आपको बिलीव नहीं होता, आप मेरी क्लास कभी चल रहे हो तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि स्टूडेंट्स कितना सेटिस्फाई है विथ माय वर्क। आपके साइड से भी फीडबैक अच्छा लगा मुझे कि चलो मैं जैसा एटमोसफियर बोलते हैं ना कि चाहता था कि स्टूडेंट्स मेरे साथ फ्रेंडली रहे, मुझे टीचर स्टूडेंट वाली फीलिंग नहीं लानी है। हाँ नॉलेज के मामले में ठीक है, चलो कुछ ज़्यादा मुझसे आपको ज़्यादा आता होगा या कोई चीज़ मुझे ज़्यादा आती होगी, बट आई थिंक रिस्ट्रिक्शन जैसा मुझे मज़ा नहीं आती है। लिबरल रह के पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, और अगर अंडर प्रेशर पढ़ोगे तो आप सर से डाउट पूछेंगे तो क्या कहेंगे, दैट इज़ काइंड ऑफ। तो थोड़ा लिबरली ठीक रहता है। और अभी आप क्या है फर्स्ट ईयर BSc में हो, मेरा भी जब फर्स्ट ईयर BSc में था तो प्रोफेसर्स के साथ डायरेक्ट बातचीत करना, थोड़े क्वेश्चंस के आंसर में वो उन लोगों का रिफ्लेक्शन मुझे समझ नहीं आता था। तो मैं तो अभी इसी साल से अपॉइंट हुआ हूँ, सो क्या है ना, मैं इनिशियल से ही थोड़ा फ्लेक्सिबल ही चलूँगा कि हाँ आपको भी थोड़ा मज़ा आए, बाकी लेक्चर्स में पढ़ाई होती रहेगी। ठीक है, तो कल हम मिलते हैं अच्छे यस से। सर, यस कल सर। मिलते हैं सर। यस यस थैंक सर। यू सर। ओके, बाय बाय। बाय सर। ओके सर। बाय 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 सर। सर। बाय। वेलकम। थैंक बाय सर। बाय बाय। जय बाय हिंद सर। सर।